Hello dear children, I am Rishi Patel, your social studies teacher, and as you know that in the history portion we have completed the first lesson, and now today we will start the second lesson of history, and that is socialism in Europe and the Russian Revolution. It means that in this chapter we will see that how this socialism spread in various part of the Europe, okay, and how it led to the Russian Revolution, which was the second revolution after the French Revolution. French Revolution that we have already studied in the first chapter, okay. And this second part of revolution, we can say that the Russian Revolution was the result of the French Revolution, that when the people they realized that we should change the monarchical form of government and adopt the democratic form of government. So in Russia also they were not happy with the rule of Tsar. So Tsar, so it was the name of a king. Like in the French Revolution we saw King Louis XVI. So the term that is used to refer king in Russia was Tsar, T-S-A-R, okay. So all the things that we will see in detail in this chapter, okay. So what I told you that this Russian Revolution was the result of the French Revolution, and I think you remember that the French Revolution occurred in 1789, okay. So I think you remember this date 1789. So it was the date of what? Date of, just wait a second. French Revolution. Okay, so in 1789, okay, so in 1789, the people of France they became successful to change the monarchical system, okay, and they formed what? They formed the democratic system in France. So in democratic system, so first they have monarchical system, monarchy, okay. So monarchy was abolished and then changed France into a democratic government, okay, democratic, and then also France become a republic, okay. So in monarchical system you all know that all the things was controlled by king what had power to make the laws, but the people of France they were not happy with the King Louis XVI. On that time the king of France was what? Louis XVI. तो लुई 16 से वो लोग हैप्पी नहीं थे और इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिस्टम को चेंज करना शुरू किया, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही थी फ्रांस में वो कॉमन लोगों के लिए नहीं थी. इट मीन्स द कॉमनर्स दे हैड टू गिव टैक्सेस, हाई टैक्सेस फॉर एवरीथिंग, ओके. सो ओवरऑल वो खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को क्या किया, चेंज किया. और फिर चेंज करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को चेंज करने का मतलब ये है कि अभी तक जो सारी चीज़ें किंग के थ्रू हो रही थी, नाउ दे विल फॉर्म देयर, नाउ द कॉमन पीपल विल व्हाट, फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, ओके. सो व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, सो दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड व्हाट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके. देन इन दिस पार्ट after some time gradually France become a republic also, that I have already explained in the first lesson. Now the topic that we will start today is the story, or you can say the background of French Revolution, Russian Revolution, कि French Revolution जैसे कंप्लीट होता है, अचीव होता है फ्रांस में, उसके बाद कौन कौन सी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलती हैं, ओके, अदर यूरोपियन कंट्री में. और हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस में वो कौन कौन सी चीज़ें जो हो चुकी थी और उसका इम्पैक्ट कैसे रसिया में पड़ा, ओके. So first of all we will see that the whole society, the whole after French Revolution, the means I think you all know that with this change, means the change from monarchical system to democratic system, not all the people, all the groups were satisfied. सभी लोग इससे खुश नहीं होंगे, ठीक है ना. स्पेशली जो पुअर्स होंगे वो तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन जो कंजर्वेटिव टाइप के जो लोग थे, जो ट्रेडिशनली जो राजा महाराजा के किंग उसमें रूल में बिलीव करते थे, ठीक है ना, किंग को सारा पावर देना चाहते थे, तो वो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है ना. तो इस तरह से लोगों की थिंकिंग अब अलग अलग हो गई. कुछ लोग इसको सपोर्ट करते थे, कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके. तो इस तरह से जो पूरी सोसाइटी थी, यूरोपियन सोसाइटी, वो 3 पार्ट में बढ़ जाती है, ओके. सो फर्स्ट इज यू कैन से
the liberals, okay, the radicals and conservatives. So these are the what? These are the three groups into the whole European society was divided after the French Revolution. लोगों की थिंकिंग अब अलग अलग हो चुकी थी. ओके, तो पहले हम एक एक करके देखते हैं. अब पहले हम देखेंगे लिबरल्स कौन थे, फिर रेडिकल्स देखेंगे, फिर कंजर्वेटिव देखेंगे. यहीं पे आप एक बात जान लीजिए कि ये जो लिबरल्स और ये रेडिकल्स दोनों जो थे वो दोनों इक्वल थे अप्रॉक्सीमेटली. उनकी जो थिंकिंग थी वो लगभग एक थी. कहीं कहीं पे वो डिफर करते थे, जैसे वोटिंग राइट सबको देने के बेस पे या प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के बेस पे, तो वो एक दूसरे से अलग थे. ओके, तो लिबरल्स और रेडिकल्स तो दोनों एक किस बेस पे थे? बिकॉज दे बिलीव्ड इन व्हाट? दे बिलीव्ड इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. They did not want the monarchical form of government. So and they also against the uncontrolled power of king. तो इन बेसिस पे वो क्या थे? एक दूसरे से सेम मतलब वो थे, एक थिंकिंग थी. लेकिन वोटिंग राइट को देने में तो ये जो लिबरल्स थे वो वोटिंग राइट सबको नहीं देना चाहते थे, स्पेशली वुमेन को वोटिंग राइट वो नहीं देना चाहते थे. लेकिन जो रेडिकल्स थे वो वोटिंग राइट देना चाहते थे. इन दोनों से सबसे अलग जो पार्ट था वो क्या था? कंजर्वेटिव का था. तो जो कंजर्वेटिव थे, तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? जो हर अपने रूल्स को, अपने नॉर्म्स को, अपने ट्रेडिशन को कंजर्व करके रखेगा, बचा के रखेगा. इट मीन्स दे बिलीव इन द व्हाट? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दे बिलीव इन द रूल ऑफ किंग, और वो किंग को हटाना, किंग को मारना, ठीक है ना, इस सिस्टम को चेंज करना, इसके वो फेवर में नहीं थे. हालांकि बाद में इनको खुद लगा कि कुछ चेंजेस इनएविटेबल हैं, नेसेसरी हैं, ठीक है ना, कुछ चेंज होने चाहिए. लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप किंग को मार दीजिए या फिर कोई भी आप क्राइम करिए किंग के अगेंस्ट. तो वो बिलीव उसमें नहीं करते थे. ओके, चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं सारे पार्ट को. सर okay, so first we will see okay, see, so what I told you about the liberals. So they were what? So they wanted a nation that tolerate all religions. It means they tolerated all the religions. तो इनका बिलीव ये था कि क्या करना है कि इस तरह की गवर्नमेंट हो, इस तरह की कंट्री हो जहाँ पे सारे रिलीजन को इक्वल माना जाए. दैट टुडे वी नो दैट सेकुलरिज्म. ओके, सो दे बिलीव इन सेकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सारे रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, जिसका जो मर्जी हो, जिस तरह से चाहे वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, जैसे आज के ज़माने में हमको ये मिला हुआ है राइट. ओके, तो वो इसी तरह का, क्योंकि इसके पहले जो मोनार्कियल सिस्टम था तो उसमें लोग अपने खुद के रिलीजन को वो क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, जो किंग से कहता था या फिर जो अपर क्लास के लोग रहते वो कहते थे, तो उनको वही रिलीजन फॉलो करना पड़ता था. लेकिन ये जो लिबरल्स थे वो बिलीव करते थे कि जो रिलीजन का जो इशू है उसमें लोगों को फ्री कर देना चाहिए. जो मन करे जिस रिलीजन में वो जाना चाहें उस रिलीजन को वो वो जा सकते हैं, उनकी वर्शिप कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट दे आल्सो अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ किंग. ये भी मैंने आपको बताया है, अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ किंग. डायनेस्टिक रूलर्स मीन्स द किंग. तो ये इसमें भी क्या थे? इसके वो अगेंस्ट थे, ठीक है ना, इसके वो अगेंस्ट थे कि क्या करना है कि हमको ये जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, जो किंग हैं, उनके अनकंट्रोल्ड पावर को क्या करना है, हमको अपोज करना है, उनके अगेंस्ट जाना है. क्योंकि ये किस में बिलीव करते थे? ये बिलीव करते थे इलेक्टेड गवर्नमेंट पे. सो दे डिड नॉट बिलीव इन मोनार्कियल सिस्टम और द रूल ऑफ किंग. ओके, सो एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. वो जो इंडिविजुअल्स के कुछ राइट्स होनी चाहिए, ठीक है ना. पहले जो कॉमन्स थे उनको कोई राइट्स नहीं था, इवन राइट टू लाइफ भी नहीं, ठीक है. मतलब वो उनसे जो उनकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी, ठीक है, उन पे ऊपर कई तरह के बाउंडेशन लगाए जाएंगे. तो इस तरह से ये बिलीव करते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो रिच हों पुअर हो, सबको क्या होना चाहिए? उनके पास कुछ राइट्स होनी चाहिए, ठीक है ना. लाइक टुडे वी हैव राइट टू स्पीच, फ्रीडम की हमको राइट है, हमको अपने रिलीजन को मानने का राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. सो वी हैव सो मेनी राइट्स दैट वी हैव टुडे. सो इन द सेम वे लिबरल्स आल्सो दे बिलीव्ड इन व्हाट? दैट सम राइट्स शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल्स. ओके,
Okay. They also argued for an elected. What I told you, for an elected. Just wait a second. So they argued or they talked about the elected parliamentary government. Elected parliamentary government. It means now the government should be elected. अब ऐसा ना हो कि वो फैमिली के बेसिस पे हो, डायनेस्टी के बेसिस पे हो, हेरिडेटरी के बेसिस पे हो, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो उनको कॉमन लोग चूज करें, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो लॉज जो क्या हो जो लॉज बनाए जाए, ठीक है ना, वो ये गवर्नमेंट जो जिसको हमने इलेक्ट किया है वो लॉज को बनाए। पहले जो किंग बोल देता था वही लॉज होती थी, वही कानून होती थी, लेकिन अब उसमें बिलीव नहीं किया जाएगा। जो क्या होगा, जो लॉ को बनाने का जो काम होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का होगा। और इलेक्ट कौन करेगा? सारे लोग, ओके। और इसके साथ साथ एक वेल ट्रेंड जुडिशरी भी होनी चाहिए। जुडिशरी जो हमको आज पता है, सो जितने कोर्ट्स हमारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे, उस सारे को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? जुडिशरी कहते हैं, न्यायपालिका हिंदी में कहते हैं उसको, ओके। सो इसमें भी बिलीव करते थे कि कभी भी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक जुडिशरी भी होनी चाहिए जो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, जो झगड़ों को सॉल्व करेगा, ओके। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। सो व्हाट आई टोल्ड यू, जो ये लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। जस्ट वेट ए सेकेंड, वो क्या थे? वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। क्यों नहीं थे डेमोक्रेट्स? क्योंकि ये जो लिबरल्स थे वो वोटिंग राइट सबको देने के फेवर में नहीं थे। वो ये सोचते थे कि वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में तो बिलीव करते थे, ठीक है ना, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में तो बिलीव करते थे, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। मतलब वो उनको हम ट्रू डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते हैं, और क्योंकि वो जो यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप जानते होंगे, दैट वोटिंग राइट टू ऑल, सबको अगर वोटिंग राइट देते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ओके। तो इस बेस पे अगर हम क्या करेंगे, किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और वोटिंग राइट नहीं देते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल वोटिंग एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोटिंग राइट टू ऑल, ओके। नेक्स्ट, then radicals. So same thing that we will see here. What they also believe in, what government, you can see here. They wanted a nation in which government was based on majority of a country. Same thing यहाँ पे अलग टाइप, अलग वे में लिख दिया हुआ है कि वो किस गवर्नमेंट में बिलीव करते थे, जिसको मेजॉरिटी के लोगों ने चूज किया हो, स्पेशल लोगों ने नहीं। मतलब इलेक्शन के थ्रू जिसको चूज किया गया उस गवर्नमेंट को क्या करते थे, वो उसमें बिलीव करते थे। और इसके साथ साथ जो ये भी समझते थे कि जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको वो इसमें बिलीव करते थे कि ऐसा नहीं है कि केवल स्पेशल लोग ही क्या कर सकें, मिल के वो क्या करें, वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर लें, कंट्रोल कर लें। वो चाहते थे प्रॉपर्टी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और सब जो बातें हैं जो बची हुई वो सेम हैं, जिस तरह से वो लिबरल्स थे उसी तरह के रेडिकल्स भी थे। बट ये वोटिंग इसमें ये किस में बिलीव करते थे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव करते थे। मतलब वो सबको क्या करना चाहते थे, वोटिंग राइट वो सबको देना चाहते थे। इसीलिए वो क्या है, ये रेडिकल जो है वो लिबरल्स थे, अलग थे, ओके। नाउ कंजर्वेटिव, सो दीज group was what, this group was different from radicals and liberals, okay, because they resisted change. resisted का मतलब होता है oppose, just wait a second. So they opposed what, these changes. तो जो भी चेंजेस हो रहे थे, मोनार्कियल सिस्टम को चेंज करके क्या किया जा रहा था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किया जा रहा था। तो क्या है, तो वो उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो जो भी चेंज हो रहा था उसके वो अगेंस्ट थे, इन द सिंपल लैंग्वेज, ओके। बट जो रिवोल्यूशन हुए फ्रांस में, उनके बाद इनको लगा कि नहीं, कुछ चेंज एक्सेप्ट हमको करना चाहिए। सो दे रियलाइज दैट सम चेंजेज आर व्हाट नेसेसरी एंड वी शुड एक्सेप्ट द चेंजेस, ओके, बट इट शुड बी इन स्लो, ओके, एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। तो ये बिलीव करते थे कि जो चेंज हो उसमें हमको क्या करना चाहिए, जो पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ स्लोली, धीरे धीरे चेंज हो,
आपको मोनार्कियल सिस्टम हटाना है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आप खून खराबा करके राजा को मार के फांसी दे के आप अचानक से चेंज कर दें। तो वो अचानक से चेंज में वो बिलीव नहीं करते थे। वो ये चाहते थे कि ठीक है, चेंजेस नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, ओके। तो इस वे में लेकिन चेंज आप करिए, लेकिन वो स्लो वे में करिए। और इसके साथ साथ आप जो भी पास्ट है, पास्ट में कभी ना कभी आप राजा जो किंग के टुवर्ड्स बहुत लॉयल रहे हैं, उनकी बातों को आप मानते थे, उनकी आप वर्शिप करते थे, तो उनका भी आप रिस्पेक्ट करिए। आप ऐसा नहीं किंग को अचानक से आप क्या करेंगे, मार देंगे। सो ऑन दैट थिंग दीज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द अदर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। थैंक यू। पॉज करिएगा बस।